Right. Hi students, I am Muzir. Welcome to my channel, Muzir's Academy and Muzir's Chemistry. Now today's class is purification of organic compounds. Purification of organic compounds. అమ్మాయి జాయిన్ అయిందా లేదా చూడు చెప్పు ఒకసారి. హలో. Now purification of organic compounds. This is also one of the important topic. Purification. Purification of organic compounds. Organic compounds. So this is today's topic. Purification of organic compounds. Now look at the board. ఇది ఈజీగా తొందరగా కవర్ చేసేద్దాం. షార్ట్ టైం में कंप्लीट करेंगे इसे. So now different organic compounds contains different types of impurities. How to remove those impurities? To remove those impurities, different techniques we have to follow. That depends upon the nature of the organic compound and the nature of the substance which is added to the impure organic compound to remove impurity. So the different techniques are there. Which technique is used when, at what time? So that can be discussed here. Now first one is crystallization. Topic is crystallization here. First one. This technique can be used to remove solid organic compounds. Solid organic compounds containing impurities. How to remove these impurities from this solid organic compound? This organic compound means organic compound containing impurities is taken into a beaker and it is mixed with a suitable solvent. For example, here sugar and salt both are present in the beaker. We have to separate sugar and salt. How do you separate this sugar and salt? To this mixture means this impurity means mainly organic compound, sugar here organic compound, here salt is impurity. To this impure organic compound, hot ethanol is added. Ethanol means ethyl alcohol. Ethanol is added or ethyl alcohol is added. As a result, what happens? As a result, here sugar is dissolved in ethanol. Sugar is dissolved in ethanol, leaving behind the salt. Salt crystals remains in that beaker as it is, salt crystals. And when it is filtered, that solution is filtered. Here, this is filter paper. On filtering, sugar crystals remains, salt crystals remains on the filter paper and sugar plus ethanol liquid comes out from this end. That is collected in this beaker. When it is cooled, here sugar becomes crystals leaving behind the liquid ethanol. Like that we can separate sugar from the salt. Okay. So that is the process. See once again. Here first one is crystallization.
This process is applied for solid organic compounds. Solid organic compounds. Okay. Example. Here sugar is main organic compound that contains, for example, salt. Inorganic compound as impurity. This is impurity. This is required organic compound. That organic compound is taken into a beaker. Means sugar plus salt. Okay. Mixed with alcohol, ethanol or ethyl alcohol. Ethyl alcohol. Hot ethyl alcohol. As a result, sugar dissolved in ethyl alcohol, leaving behind the salt. Salt crystals उसमें रह जाते हैं इसी तरह. इसे फिल्टर करने से, दिस इज फनल, फिल्टर पेपर एंड बीकर. ये लिक्विड को इसमें डालने से शुगर क्रिस्टल्स यहाँ पर रुक जाते हैं और इसमें कलेक्ट होता है कि शुगर प्लस अल्कोहल लिक्विड, दो भी लिक्विड स्टेट में होते हैं. इसे कूल करने से, ऑन कूलिंग, कूल करने से, कूलिंग, इसमें कूल करने से शुगर क्रिस्टल्स बन जाता है. इथाइल अल्कोहल रिमेन्स लिक्विड. इथाइल अल्कोहल, ऊपर वाला इथाइल अल्कोहल लिक्विड, इथाइल अल्कोहल, एंड दिस क्रिस्टल्स आर शुगर क्रिस्टल्स. फिर भी इसे फिल्टर करने से, यहाँ पर फिल्टर पेपर रख के फिल्टर करने से यहाँ पर शुगर क्रिस्टल्स निकल जाते हैं और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल आ जाता है. सो इसी तरह सेपरेट कर सकते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल लिक्विड. ओके, सो लाइक दैट वी कैन सेपरेट solid organic compounds when contains impurities. Example, sugar plus salt. Suitable solvent. ये organic compound एक ही soluble होना पड़ेगा. ये ethyl alcohol means solvent में. दो भी मिक्स होने से फायदा नहीं है, यूज नहीं है. इसलिए एक soluble होना, एक नहीं soluble होना. उसी तरह suitable solvent लेना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर आपके लिए एक चार्ट है, ये चार्ट नोट कर लीजिए. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चार्ट में सब कुछ आ जाएगा, आपको मिल जाएगा. सो क्रिस्टलाइजेशन, इसका प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स इंप्यूरिटीज इन द सेम सॉल्वेंट. सेम सॉल्वेंट में एक सॉल्युबल होना, दूसरा नहीं सॉल्युबल होना. एंड एप्लीकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर containing an impurity of common salt is achieved by shaking the impure solid with hot ethanol at 348 kelvins. Sugar dissolves whereas common salt remains insoluble. बस हो गया. ओके, सो ये पूछता है कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर विच कंपाउंड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स पूछता है. सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्रिंसिपल क्या है? एक सॉल्युबल होना, एक नहीं सॉल्युबल होना, ये तो प्रिंसिपल है. एग्जाम्पल, साल्ट प्लस शुगर, ऐसा याद रखना. दूसरा वाला सब्लिमेशन. क्या है ये सब्लिमेशन? ये सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन मीन्स सपोज सॉलिड, ये एनी सॉलिड ऑन हीटिंग बिकम्स लिक्विड. सॉलिड को हीट करने से लिक्विड बन जाता है. ऑन हीटिंग लिक्विड बिकम्स वेपर, isn't it? वेपर बन जाता है. Suppose here it is ice and here liquid water and here water vapor, है ना? इसी तरह बन जाता है. Any substance, any solid substance on heating first becomes liquid, उसके बाद वेपर बन जाता है. Some substances सॉलिड को हीट करने से डायरेक्ट वेपर स्टेट में निकल जाता है, वो वेपर, विदाउट एंटरिंग लिक्विड स्टेट. सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड sublimable substances. That process is called sublimation. Sublimation.
That process is called sublimation. Okay. Sublimation. Okay. Now, that is sublimation process. What is sublimation? When a solid is heated, that directly enters into vapor state without entering in liquid state. That process is called sublimation. This sublimation process is used for the organic compounds which are sublimable, which have the characteristic sublimation. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेट होते हैं वो कंपाउंड्स को यूज करते हैं. इसमें क्या करते हैं ये प्रोसेस में? In this process, organic compound, this is organic compound containing impurities. इसमें impurities है organic compound में. ये मटेरियल को हीट करते हैं, ये सब्सटेंस को. इसके ऊपर एक फनल रखते हैं, इसी तरह फनल. ये फनल में यहाँ पर कॉटन लगा देते हैं, कॉटन लगा के हीट करते हैं. इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सब्लिमेट होता है, सब्लिमेट. सो इसे हीट करने से इम्प्यूरिटीज सब्लिमेट नहीं होते हैं. वैसा वाला इम्प्यूरिटी रहने से ही ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं. दो भी सब्लिमेट होने से ये प्रोसेस यूज नहीं होगा. सो एक सब्सटेंस इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्यूरिटी सब्लिमेट होने का कैपेसिटी होना चाहिए. अगर नहीं है तो ये प्रोसेस यूज नहीं होगा. एक सब्लिमेट होने वाला, दूसरा नहीं सब्लिमेट होने वाला होना पड़ेगा. इसमें इम्प्यूरिटीज आर नॉन सब्लिमेबल. ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सब्लिमेबल कंपाउंड. When it is heated, this organic compound directly enters into vapor state without entering in liquid state. That process is called sublimation. यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कॉटन है ना, यहाँ रुक जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं फनल के ऊपर, वॉल्स के ऊपर. इसमें जो सब्लिमेट नहीं होता है वो कंपाउंड यहाँ पर रुक जाता है बीकर में. ये फनल निकाल के उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके. फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछता है कि एग्जाम्पल्स क्या है, ये याद रखना पड़ेगा. यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार सब्लिमेशन. सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. Sublimable compounds get separated from non-sublimable impurities. So sublimation process is used to separate from non-sublimable impurities. Okay, ये याद रखना. ये तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल याद रखना और एग्जाम्पल्स याद रखना. उसके लिए एग्जाम्पल्स पूछता है ये. आयोडीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. आयोडीन सोडियम क्लोराइड दो भी मिक्स होके है. आयोडीन I2, सोडियम क्लोराइड NaCl. दोनों सब्सटेंस देखने के लिए एक ही जैसा होते हैं, क्रिस्टल्स, व्हाइट क्रिस्टल्स. NaCl कॉमन सॉल्ट. ओके. ये दोनों को लेके हम हीट करने से आयोडीन वेपर बन के निकल जाता है, NaCl यहाँ पर रह जाता है. इसी तरह आयोडीन एंड NaCl. सो क्वेश्चन में ऐसा पूछता है, आयोडीन एंड NaCl मिक्सचर कैन बी प्यूरिफाइड बाय डैश प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, fractional distillation. Answer is sublimation. In which is a sublimable substance. Iodine is a sublimable substance. Okay. और दूसरा camphor, naphthalene, anthracene, benzoic acid are purified by this process. ये examples याद रखना पड़ेगा. क्या क्या है यहाँ देखो, camphor, naphthalene, anthracene, benzoic acid, iodine and ammonium salts. Very important. Ammonium salts, ammonium chloride, ammonium bromide, ammonium iodide. Okay, ये सब नोट कर लेना. Okay. So sublimation process is used to separate sublimable compounds contains non-sublimable impurities. Example: iodine, camphor, naphthalene, anthracene, benzoic acid and ammonium salts. बस हो गया. Right? प्रिंसिपल क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, ये याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज डिस्टिलेशन. व्हाट इज डिस्टिलेशन?
See, it is used to separate volatile liquids from non-volatile impurities. Liquids having sufficient difference in their boiling points. एक volatile होना, एक दूसरा non-volatile होना. Means, what you call this process, distillation process is used to separate liquid substances. Applicable for liquid organic compounds containing liquid impurities. देखो इसमें कैसा करते हैं. That is, now a process में suppose एक राउंड बॉटम फ्लास्क ऐसा लेके ये राउंड बॉटम फ्लास्क में ये लिक्विड लेते हैं, organic liquid containing liquid impurities. One is organic compound liquid state, organic liquid, and liquid impurities. ये दो है. ये दो में ऑर्गेनिक लिक्विड को सेपरेट करना, इसे ऐसा राउंड बॉटम फ्लास्क में लेके. ये प्रोसेस तो जरूर नहीं है. आपको पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, ये बस ये याद रखना पड़ेगा. ओके, इसे हीट करने से इसमें से व्हाट यू कॉल वेपर्स निकल जाएंगे. यहाँ पर कंडेंसर होता है, ये कंडेंसर में वाटर फ्लो होता है. ये वाटर यहाँ से टैप वाटर फ्लो होता है, ये ट्यूब के साइड्स में ऐसा. ये वाटर हॉट होके मीन्स यहाँ पर हॉट वेपर्स आते हैं ना अंदर से, इसका टेम्परेचर ये लेके वाटर गर्म हो जाता है, वो इधर से निकल जाता है. हॉट वाटर यहाँ से निकल जाता है. यहाँ से कोल्ड वाटर सप्लाई करते हैं. यहाँ से ये लिक्विड होके ये वेपर पूरा लिक्विड बन के कूल हो जाके लिक्विड बन के ड्रॉप्स इसमें कलेक्ट होता है. दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज वॉलेटाइल मीन्स हीट करने से वो वेपर बन के बाहर निकलता है. दूसरा लिक्विड इम्प्यूरिटी है ना, इसे हीट करने से भी ये वेपर नहीं बनेगा. सो दिस लिक्विड इम्प्यूरिटी इज नॉन वॉलेटाइल. दिस इज नॉन वॉलेटाइल. एक वॉलेटाइल, दूसरा नॉन वॉलेटाइल. यहाँ पर इम्प्यूरिटी नॉन वॉलेटाइल, ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलेटाइल, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से निकल जाता है. इसी तरह सेपरेट कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर डिस्टिलेशन, प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है. हर एक प्रोसेस में भी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना पड़ेगा. डिस्टिलेशन principle, it is used to separate volatile liquids from non-volatile impurities. Liquids having sufficient difference in their boiling points. Sometimes देखो यहाँ पर दो भी लिक्विड्स है ना, एक लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेज होने से ये वेपर बन के आ जाएगा, बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ये दूसरा इम्प्यूरिटी है ना, ये इम्प्यूरिटी का बॉइलिंग पॉइंट है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड. देखो ये दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है. 80 and 30 डिफरेंस इज 50 डिग्रीज है डिफरेंस. ओके, इसी तरह बहुत डिफरेंस होना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट्स में. अगर ये डिफरेंस रहने से लो बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले निकल जाएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला यहीं पर रह जाएगा. सो दैट इज इट्स मीनिंग. नाउ once again, it is used to separate volatile liquids from non-volatile impurities. Liquids having sufficient difference in their boiling points, approximately generally greater than 40 degree centigrade. ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में, how much difference should be present in between organic compound and impurity. Boiling point should be greater than 40 degree centigrade. Okay,
ఎగ్జాంపుల్ హెక్సేన్ అండ్ టోలిన్ అంటే अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्रीज, नॉट एग्जैक्ट 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज में उधर इधर. सो क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन. देखो बॉइलिंग पॉइंट्स भी दे गया वहां पर 342 केल्विन्स एंड 384 केल्विन्स. ओके 384 एंड 342 डिफरेंस कितना है 2 4 माइनस 2 2 8 माइनस 4 4 42 डिग्रीज है यहाँ पर. ओके ये दोनों के बीच में कितना है सपोज 3 4 57 ये 457 और 334 7 माइनस 4 3 and 5 minus 3 2 23. Okay and 4 minus 3 1. Okay 123 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस है दोनों के बीच में. सो लाइक दैट कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड. डिस्टिलेशन. ओके क्या क्या एग्जांपल्स है याद रखो. हेक्सेन एंड टोलिन, ये बॉइलिंग पॉइंट्स को याद रखने का जरूर नहीं. हेक्सेन एंड टोलिन, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, ये जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो याद रखने से सफिशिएंट है. ऐसा वाले बहुत से कंपाउंड्स देने से सर कैसा पहचान सकते मीन्स वी कांट ऑब्जर्व, हम नहीं बता सकते उसके लिए. सो जो टेक्स्ट बुक में हमको पढ़ाया गया है वो पढ़ लेने से हम आंसर कर सकते हैं. ओके राइट. नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सेम इसी तरह होता है डिस्टिलेशन तरह. नाउ ये प्रोसेस तो इम्पोर्टेंट नहीं, मैं जो प्रोसेस यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ मैं बोर्ड के ऊपर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो तो जरूर नहीं, जस्ट समझने के लिए. वो सपोज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर बेस होकर रहता है. ये भी लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं ये प्रोसेस भी. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर liquid organic compounds based on boiling points. डिस्टिलेशन प्रोसेस में ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये बिलो 40 डिग्रीज और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस बीपी डिफरेंस इज वेरी लेस बिटवीन द कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम रहने से भी ये प्रोसेस यूज करके सेपरेट कर सकते हैं. सपोज इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ओके इसमें से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक एक को सेपरेट करना पड़ेगा. और इम्प्योरिटीज भी है. इम्प्योरिटीज जो नॉन वॉलेटाइल है वो इसमें रह जाते हैं. नॉन वॉलेटाइल वाले पूरे आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये इज मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बी सी डी आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट दे आर वॉलेटाइल. सो इसको इम्प्योरिटीज एंड दे आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज. ओके मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना और ये वाले कंपाउंड्स को भी सेपरेट करना, वो भी वॉलेटाइल है. ये भी मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलेटाइल, जो इम्प्योरिटीज बी सी डी आर वॉलेटाइल एंड यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल भी है. ये सबको सेपरेट कर सकते हैं. इसे राउंड बॉटम फ्लास्क में लेके इसे हीट करते हैं, बॉयल करते हैं. बॉयल करने से इसमें से पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले निकल जाएगा. पर ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होता है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा निकलता है ना, 50, 60 ऐसा होता है ना. पहला व्हाट यू कॉल 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला निकलता है. फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला निकल के ऐसा ऊपर जाता है. ये वेपर ऊपर जाने से यहाँ तक जाके कूल होके ये वॉल्स के ऊपर से ऐसा नीचे आ जाता है. इस बीच में 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है ना सब्सटेंस, वो इवापरेट होके 50 डिग्री टेम्परेचर में ऊपर आएगा. एक लिक्विड नीचे ऐसा आ रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कूल होके, दूसरा वाला 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ऊपर आ रहा है.
ये 50 डिग्री से ये 40 डिग्री वाला टेम्परेचर गेन करके ये फिर भी ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ आउटलेट होता है, ये आउटलेट से बाहर निकलता है, यहाँ पर एक वेसल रखते हैं, ये वेसल में ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कलेक्ट हो जाता है 40 डिग्री वाला, बाद में ये कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री रख के यहाँ पर हीट करते हैं, 40 होने के बाद 50 रेस करते हैं टेम्परेचर, ये 50 वाला नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकलता है, ये वेसल निकाल के बाद में दूसरा वेसल रखते हैं, उसमें बी कलेक्ट होता है, उसके बाद सी कलेक्ट करते हैं, इसी तरह कलेक्ट करते हैं एक के बाद एक। वो प्रोसेस का ये जरूर नहीं है, आपको प्रोसेस तो जरूर नहीं है, आपको होना है कि प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये प्रोसेस के बारे में घबराना मत। सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम है, 40, 50 एंड 60, जस्ट 10 डिग्रीज, 8 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, ऐसा लेस डिफरेंस होने से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इम्प्यूरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस में। ओके, सो ये प्रोसेस देखो एक बार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। If the difference in boiling points of two liquids is not much, this method is used. क्वेश्चन वैसा पूछते हैं, if the difference in boiling points of two liquids is not much, which process should be used? Fractional distillation. Okay, example क्या है fractional distillation? Crude oil in petroleum industry. Crude oil in petroleum industry. Petrol is different from petroleum. Petroleum means rock oil. Rock oil means crude oil is called petroleum. Crude oil in petroleum industry is separated into various useful fractions such as gasoline, kerosene oil, diesel oil, lubricating oils, etc. Just example is crude oil. Fractional distillation के लिए example crude oil. बस process तो आपको जरूर नहीं। ओके, सो इसे कब यूज कर सकते हैं? इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट मच, वो प्रिंसिपल है। ओके, बस हो गया। केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत से हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स निकलते हैं ये क्रूड ऑयल से। ओके, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स having very high boiling points which decompose yet are below their boiling points. देखो यहाँ पर distillation under reduced pressure. So in this year syllabus में बहुत से changes है ना, some chapters निकाल दीजिए गया, उसके बाद ये practical chemistry ऐड करा है। So ये practical chemistry में ये सब important है। इसके पहले ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, इससे क्वेश्चंस नहीं आते थे, अभी आने का चांस तो ज़्यादा हो गया क्योंकि सिलेबस चेंज करा है। ये सिलेबस चेंज करे सो सिलेबस में व्हाट यू कॉल ये लैबोरेटरी टेक्निक्स प्रोसेसेस जो है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने का ज़्यादा इंटरेस्ट बता रहे हैं वो एनटीए वाले, वो सिलेबस में भी याद करके है आपके पास, आप जानते हैं उसके बारे में। ओके, सो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ये कब यूज करते हैं, एग्जांपल्स क्या है? सो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, देखो यहाँ पर सपोज कंपाउंड इज लाइक दिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज। इसे आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लो, इसे हीट करो बर्नर से, हीट करने से इम्प्यूरिटी नॉन वॉलेटाइल, जितना भी टेम्परेचर आने दो वो वेपर नहीं बनेगा, यहीं पर रह जाएगा इम्प्यूरिटी। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड, ये भी इम्प्यूरिटी आल्सो लिक्विड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वेपर बन जाएगा,
लेकिन फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्रीज है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका नेचर है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज 70 डिग्री सेंटीग्रेड के पास डिकम्पोज हो जाएगा। सपोज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे, जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स ऐसा डिकम्पोज हो जाएगा। हमको होना है कि यहाँ पर कंपाउंड होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल CXHYNZ इसका फार्मूला है। ये कंपाउंड ऐसा ही आना पड़ेगा, बाहर ऐसा निकलना पड़ेगा। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट से भी नियरली इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट डिकम्पोजेस इनटू एलिमेंट्स जैसा जितने एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स पूरे सेपरेट हो जाते हैं। सो इसीलिए फायदा नहीं है, एलिमेंट्स नहीं चाहिए हमको, कंपाउंड होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसमें से जो एयर है इसमें ये एयर को बाहर निकाल देते हैं। सक्शन पंप रख के यहाँ से निकाल देते हैं। निकालने से इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने से, प्रेशर रिड्यूस करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो 80 डिग्रीज है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट, अभी वो 60 डिग्रीज के पास बॉइल हो जाएगा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड के पास वो वेपर बन के बाहर आ जाएगा, वो कलेक्ट होगा विदाउट डीकम्पोजिशन। सो क्या करें, यहाँ पर हम प्रेशर रिड्यूस करें। प्रेशर रिड्यूस करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड के पास वेपर बन के आ गया। बॉइलिंग पॉइंट इट बॉइल्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली, नॉट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई? बिकॉज प्रेशर इज रिड्यूस्ड। ये तो टेक्निक है, यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस करने से वो लोअर टेम्परेचर के पास बॉइल हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। So this process is applied for the compounds which decompose at or below their boiling points. देखो यहाँ पर distillation under reduced pressure. It is used to purify liquids having very high boiling points वाले, which decompose at or below their boiling points. डिकम्पोज होने वाले सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट ले इन सोप इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्लिसरॉल एंड स्पेंट ले आर सेपरेटेड बाय डैश प्रोसेस, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये प्रोसेस कब यूज कर सकते हैं? जो लिक्विड्स के लिए हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लिक्विड्स के लिए, और दूसरा है कि जो लिक्विड्स डिकम्पोज होते हैं कि बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उस कंपाउंड के लिए ये यूज कर सकते हैं। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टीम डिस्टिलेशन ये प्रोसेस कब यूज करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन। नाउ देखो इसमें, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वॉलेटाइल, immiscible with water, possess a vapor pressure of 10 to 15 mm Hg and contain non-volatile impurities. Look at the board. ये प्रोसेस कब यूज करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन। सपोज इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटी है इसमें, वो भी लिक्विड है। ये दो लिक्विड्स को सेपरेट करना। सो इसे एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लेके इसको भी हीट करते हैं। हीट करने से ये क्या होता है, यहीं पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जितना भी टेम्परेचर हीट करो ये वेपर होके बाहर निकलता है ना, ये जस्ट 10 to 15 mm प्रेशर होता है इसका। ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर होने से ये बाहर निकल जाता है। इसका प्रेशर ओनली 10 to 15 mm होता है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये लो प्रेशर में होता है यहाँ पर, इसीलिए इसमें वाटर वेपर भेजते हैं। इसमें वाटर वेपर,
वाटर वेपर भेजने से, मीन्स स्टीम, वाटर वेपर मीन्स हॉट स्टीम, ये स्टीम इसमें भेजने से ये स्टीम हाई प्रेशर में आता है ना, यहाँ से ये हाई प्रेशर में ये वाटर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पूरे इसमें से ऐसा दो भी इधर निकल जाते हैं। सो यहाँ पर आते हैं कि वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दो भी बाहर निकलते हैं। यहाँ पर टेक्निक होना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड नॉट इमिसिबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होना, लेकिन वाटर वेपर के साथ बाहर निकलना, ये कैरेक्टरिस्टिक होना पड़ेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में मिसिबल नहीं होना, पहला पॉइंट। दूसरा, वाटर में नहीं मिसिबल होना, वाटर के साथ वो बाहर निकलने का कैपेसिटी होना पड़ेगा जरूर। एट दैट टाइम ये दो मिलके बाहर निकलते हैं ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स एंड हॉट स्टीम दो भी निकल जाते हैं। यहाँ पर दो लेयर्स फॉर्म होते हैं, एक लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और दूसरा लेयर में वाटर होता है, वो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज यहाँ पर रुक जाते हैं, इसी तरह सेपरेट करते हैं। ओके, नाउ अभी देखो यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वॉलेटाइल। देखो स्टीम वॉलेटाइल, स्टीम के साथ वॉलेटाइल होके बाहर निकलता है। इमिसिबल इन वाटर और इमिसिबल विथ वाटर। प्रोसेस ए वेपर प्रेशर possesses a vapor pressure of 10 to 15 mmHg and contain non-volatile impurities. Okay, this is the principle. देखो यहाँ पर this method is used to separate substances which are steam volatile, immiscible with water, possesses a vapor pressure of 10 to 15 mmHg and contains non-volatile impurities. Example याद रखना, this is most important. Okay, that is aniline is separated from aniline water mixer. aniline water दो भी मिक्स होके है, उसमें से एनिलीन निकालना। सो यहाँ पर एनिलीन एंड वाटर है, एनिलीन प्लस वाटर, ये वाटर यहाँ पर रह जाएगा एंड व्हाट यू कॉल, यहाँ से स्टीम भेजते हैं ना, ये स्टीम मीन्स नथिंग बट वाटर प्लस एनिलीन, दो भी यहाँ पर निकल जाएंगे। ये वाटर यहाँ पर रह जाएगा, थोड़ा सा वाटर इसमें आ जाएगा, आने से दो भी सेपरेट लेयर्स बनते हैं, यहाँ पर उसको सेपरेट कर सकते हैं। एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सर। ओके, नेक्स्ट वन, एसेंशियल ऑयल्स, टर्पेंटाइन ऑयल, आर्थोनाइट्रोफिनोल, ब्रोमोबेंजीन, nitrobenzene, etc. can be purified by this process. Note down all those points. ये चार्ट जैसा है उसी तरह नोट कर लीजिए। So steam distillation. This method is used to separate substances which are steam volatile, immiscible with water, possesses a vapor pressure of 10 to 15 mmHg and contain non-volatile impurities. Aniline is separated from aniline water mixture, essential oils, turpentine oil, orthonitrophenol, bromobenzene, nitrobenzene, etc. वो एग्जाम्पल्स तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स याद रखो। ओके, नोट डाउन ऑल दोज पॉइंट्स। नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मीन्स टू कंपाउंड्स। देखो यहाँ पर ये प्रोसेस तो जरूर नहीं, जस्ट आपको मालूम होने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सपोज ये सेपरेटिंग फनेल बोल के एक फनेल होता है, ये फनेल ऐसा होता है, सेपरेटिंग फनेल बोलते हैं इसको। यहाँ पर स्टॉपर होता है, यहाँ पर इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क के, ये तो लिड होता है, इसमें सपोज व्हाट यू कॉल बेंजोइक एसिड।
बेंजोइक एसिड है और वाटर है, दो भी मिक्स होके है। इसमें से बेंजोइक एसिड को सेपरेट करना, इसे क्या करते हैं, ये लिड निकाल के इसमें बेंजीन ऐड करते हैं। बेंजीन सूटेबल सॉल्वेंट, सब लिक्विड्स है, वाटर लिक्विड, बेंजोइक एसिड लिक्विड, बेंजीन लिक्विड, ये दो मिला के अच्छी तरह ठीक से शेक करते हैं। उसे शेक करने से, ज़्यादा से शेक करने से बेंजोइक एसिड वाटर में मिक्स होके है ना, यहाँ पर अभी इसमें क्या ऐड कर चुके हैं हम, बेंजीन। ये बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स ये वाटर में है, ये सब इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे बेंजीन में। ये दो सेपरेट लेयर्स है ये। सो पूरे मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स है बेंजोइक एसिड के, वो पूरे इसमें आ जाएंगे। नीचे वाटर का लेयर हो जाएगा, ऊपर वाला बेंजीन प्लस बेंजोइक एसिड मिक्सर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि बेंजोइक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन बेंजीन देन वाटर, वाटर से भी बेंजीन में ज्यादा सॉल्युबल होता है। क्योंकि बेंजीन इज नॉन पोलर कंपाउंड, बेंजोइक एसिड is also non-polar compounds, like dissolves like. Non-polar compounds are soluble in non-polar solvents. Okay, like that. Here water is polar compound, so इसीलिए बेंजोइक एसिड पोलर सॉल्वेंट वाटर में से भी नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसीलिए वाटर में से निकल के बेंजीन में निकल जाते हैं। अब ये स्टॉपर ओपन करने से नीचे बीकर रख के ये लिक्विड पूरा नीचे उतर जाएगा, ऐसा वाटर पूरा आ जाएगा। वाटर आने के बाद इसको क्लोज करने से ऊपर बेंजीन एंड बेंजोइक एसिड मिक्सर होगा, वो मिक्सर को फिर भी दूसरा प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एटसेट्रा मेथड्स यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। ओके, लाइक दैट। नाउ दैट इज अबाउट डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पर, बाय शेकिंग एन एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस मीन्स वाटर, aqueous solution of an organic compound with an organic solvent in which the organic compound is more soluble than in water. वाटर में से भी organic solvent में ज्यादा soluble होने वाला organic compound रहने से the organic solvent and the aqueous solution should be immiscible. वो दो भी नहीं soluble होना पड़ेगा। Organic solvent and aqueous solution and benzene and benzoic acid and water, ये दो layers separate रहना पड़ेगा। Benzene should not soluble in benzoic acid and water mixture. Okay, वही है with each other, and so that they can form two distinct layers which can be separated by using separating funnel. वो funnel को बोलते हैं कि separating funnel। ये process तो जरूर नहीं, just technique याद रखना। Example, benzoic acid can be extracted from its water solution using benzene. Benzoic acid can be extracted from its water solution by using dash process, differential extraction. Okay, हो गया। बाद में नोट कर लो ये सब। Chromatography, next one. Chromatography. A chromatography. This chromatography was invented by Sweat. Scientist Sweat. Okay. T silent letter Sweat. T-S-W-E-T-T. Sweat. Okay. Botanist. He is a botanist. ये plants में different compounds होते हैं ना, ये compounds को separate करने के लिए Sweat एक टेक्निक को invent किया। वो टेक्निक को बोलते हैं कि क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमा मीन्स कलर। इसमें कलर्स में कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कलर वी कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। इसमें कलर्स के साथ कंपाउंड्स निकलते हैं, इसीलिए क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसे। ओके, देखो ये टेक्निक कैसा करते हैं, किस तरह करते हैं वो देखेंगे। सपोज इसमें ये टेक्निक, ये प्रोसेस तो जरूर नहीं, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। सपोज दिस इज ए ब्यूरेट,
ओके। इसी तरह ब्यूरेट है, ये तो स्टॉपर। ये ब्यूरेट को सिलिका जेल और अल्यूमिना, अल्यूमिना मीन्स Al2O3, इट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। इसमें से नहीं निकलेगा, इसमें ऐसा स्ट्रक होकर रहेगा जेल जैसा, ओके। इसके ऊपर सपोज सम प्लांट लीव्स, जो भी लीव्स आपको मिले हैं वो लीव्स लेके उसे ग्राइंड करके, एक मोर्टार में ग्राइंड करके इसे वाटर मिला के थिन पेस्ट तैयार करते हैं, थिन पेस्ट, थिन पेस्ट। ये पेस्ट को इसमें डाल देते हैं, थिन पेस्ट वाला लिक्विड, जस्ट लाइक लिक्विड, ओके, लिक्विड जैसा होता है। डालने से इसमें सपोज ए बी सी 3 कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड इसमें से पास होके यहाँ तक आएगा, और एक कंपाउंड यहाँ तक आ गया, और एक कंपाउंड यहाँ तक आ गया, ये बी सी इसी तरह आके रुक गए वैसा, ओके। क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो बहुत कम है, इसीलिए ये पहला ऐसा निकल गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, बड़े मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए यहाँ पर टिक गया। यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स और भी लार्ज साइज है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही रुक गए वो। और इसमें उसके बाद इल्यूएंट डाल देते हैं, इल्यूएंट। इल्यूएंट मीन्स क्या है सर? इट इज सॉल्वेंट or sometimes mixture of solvents, mixture of solvents, mixture of solvents, mixture of solvents। ये डालने से लिक्विड मीन्स सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड, ये लिक्विड डालने से ये फिर यहाँ है ना, ये यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, ये नीचे ऐसा सरक जाएगा, मीन्स व्हाट यू कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा आने के बाद ये यहाँ से ये लिक्विड इसमें कलेक्ट होने तक ऐसा इल्यूएंट डाल देते हैं। यहाँ पर इल्यूएंट एंड व्हाट यू कॉल कंपाउंड, ये 2 कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये कलर में होता है और दूसरा एक कलर, और सी और एक कलर में होते हैं, 3 डिफरेंट कलर्स में होता है। ये कलर यहाँ से निकल के इसमें उतरने तक इल्यूएंट डाल देते हैं। उसके बाद ये बीकर हटा के दूसरा बीकर रखते हैं, उसमें बी कलेक्ट करते हैं, ऊपर से इल्यूएंट एंड सॉल्वेंट डाल के। इसके बाद सी कलेक्ट करते हैं। सो ए बी सी इसी तरह कलेक्ट करते हैं। इसमें है कि ये मोबाइल फेज बोलते हैं इसे, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मीन्स इल्यूएंट, इल्यूएंट मीन्स सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, समटाइम्स बेंजीन और बेंजीन प्लस इथाइल अल्कोहल, ऐसा मिक्सर जो भी यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड्स, ओके। सो ये तो स्टेशनरी फेज एक होता है, मोबाइल फेज एक होता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये तो कॉलम है, कॉलम जैसा, इसीलिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसे। सो दिस इज कॉल्ड, ऐसा डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं कि क्रोमेटोग्राफी नाम रखे थे इसे, ओके, राइट। नेक्स्ट वन, इसमें ये क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट टाइप्स है, वो देखो क्या क्या होते हैं। सी क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स ऑफ ए मिक्सचर थ्रू ए स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मोबाइल फेज। समझे है ना अभी? स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज ऊपर से नीचे उतरता है इसमें। सो डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर थ्रू ए स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज, ओके। ये तो टेक्निक है, वाइडली यूज्ड फॉर सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर वेदर कलर्ड और कलरलेस। कलर्ड कंपाउंड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, कलरलेस कंपाउंड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, वो देखेंगे कलरलेस कंपाउंड्स को कैसा सेपरेट करते हैं। तो देखे ना यहाँ पर। सो क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड, सो माइन्यूट थोड़ा कंपाउंड होने से भी उसमें से ए बी सी डी डिफरेंट कंपाउंड्स को निकाल सकते हैं। सपोज व्हाट यू कॉल, एक जैसा एक छोटा सा सीड,
ये सीड लेके इसे पेस्ट करके उसमें डाल दिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। इसमें फॉर एग्जांपल 10 डिफरेंट कंपाउंड्स है, वो 10 डिफरेंट कंपाउंड्स भी सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से। थोड़ा सा कंपाउंड मिलने से भी उसमें से डिफरेंट कंपाउंड्स को हम निकाल सकते हैं ये टेक्निक यूज करके। बल्क अमाउंट का कंपाउंड जरूर नहीं है, स्मॉल अमाउंट कंपाउंड मिल गया तो भी उसमें से कितने भी कंपाउंड्स है उसमें वो सबको सेपरेट कर सकते हैं ये क्रोमेटोग्राफी। दैट इज व्हाई इट इज वेरी यूजफुल इन केमिस्ट्री, वाइडली यूज्ड फॉर सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन। सेपरेट करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या कंपाउंड है, कैरेक्टराइजेशन, उसका कैरेक्टर क्या है वो भी समझने के लिए, ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर वेदर कलर्ड और कलरलेस। ओके, इसमें होता है कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में एक टाइप है ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अभी मैं बताया ना कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ऐसा लॉन्ग ट्यूब है ना ये वाला। So differential adsorption of the various components of a mixture on a suitable adsorbent such as a silica gel or alumina। बताया था ना मैं ऐसा, इसमें सिलिका जेल को यूज कर सकते हैं और अल्यूमिना Al2O3 भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। ऊपर से जो डालते हैं सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इल्यूएंट, इल्यूएंट बोलते हैं उसे, इल्यूएंट। Okay, like that. Okay, now column chromatography, adsorption chromatography। ये तो adsorption है, column chromatography, chromatography में adsorption chromatography होता है, thin layer chromatography होता है। So adsorption chromatography के लिए example है कि column chromatography। adsorption means ऊपर ऐसा चिपक जाता है वो। So column chromatography, the mixture is passed through adsorbent packed in a glass tube। अभी बताया था ना मैं इसी तरह। So silica gel और alumina Al2O3। So the mixture is passed, इसके ऊपर पास करते हैं, passed through adsorbent। ये तो adsorbent, alumina जो है ना इसमें इसे बोलते हैं कि adsorbent, packed in glass tube। ये तो column chromatography है, column है ना इसीलिए। And mixture of naphthalene and benzophenone are purified by this process। Example important। अगर आपको पूछता है कि ये प्रोसेस किस तरह करते हैं वो नहीं पूछेगा, उसका एग्जाम्पल क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में which substances can be purified, mixture of naphthalene and benzophenone। ओके, वो याद रखना, ये सब थ्योरी है यहाँ पर। उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किस तरह करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखो यहाँ पर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इसी तरह करते हैं। दिस इज ए बीकर, ये बीकर में सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट को बोलते हैं कि इल्यूएंट, इल्यूएंट बोलते हैं। और मिक्सर सॉल्वेंट और समटाइम्स मिक्सर ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं इसमें, मिक्सर ऑफ सॉल्वेंट्स। ओके, सॉल्वेंट्स। इसमें एक ग्लास प्लेट रखते हैं इसमें, ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट के ऊपर कोटिंग होता है सिलिका जेल और अल्यूमिना, सिलिका जेल और अल्यूमिना Al2O3। ओके, सो इसके ऊपर थिन कोटिंग होता है सिलिका जेल और अल्यूमिना। हियर इट इज स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी, वो तो हिलता नहीं है ना, इसके ऊपर चिपक जाके रहता है सिलिका जेल और अल्यूमिना। ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। जो भी कंपाउंड है और प्लांट्स के रूट्स और व्हाट यू कॉल सीड्स और व्हाट यू कॉल बार्क, लीव्स एटसेट्रा, उसको ग्राइंड करके और जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया है वो सब्सटेंस को थिन पेस्ट बना के यहाँ पर डालते हैं। ये व्हाट यू कॉल, ये ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट के ऊपर यहाँ पर रख देते हैं, छोटा सा ड्रॉप जैसा। ये लिक्विड होता है ना सॉल्वेंट, ऊपर ऐसा जाता है ना,
ऐसा जस्ट लाइक ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर ऐसा इंक शो करता है ना, इसी तरह ये ऐसा ऊपर जाते समय इसमें जो भी कंपाउंड्स है वो इसमें, सपोज इसमें ए बी सी 3 कंपाउंड्स है, इसको जाते समय ये कंपाउंड्स को भी ऊपर ले जाता है। ऐसा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो ज़्यादा से दूर ऐसा निकलता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा नहीं जा पाएगा, सामने ही रुक जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज ए बी सी फॉर एग्जाम्पल, लाइक दैट। ये सपोज ये कलर्स होने से कलर्स दिखाई देते हैं, अगर कलर्स नहीं है जब क्या करते हैं, निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन ये तो इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड, निनहाइड्रिन वो एक लिक्विड है, वो ऑर्गेनिक लिक्विड, वो लिक्विड को स्प्रे करने से इसके ऊपर एक एक कंपाउंड को एक एक कलर आ जाएगा। ए बी सी, ए को एक कलर आएगा, बी दूसरा कलर, सी को दूसरा कलर आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। सो निनहाइड्रिन इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमाइनो एसिड्स, पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स कलरलेस होते हैं, कलरलेस। ये कलरलेस ऐसा सेपरेट हुए कि या नहीं, कितने कंपाउंड्स है कैसा समझते हैं, कलर नहीं रहने से निनहाइड्रिन स्प्रे करने से वो कलर बन जाएगा। सो ये कलर एक एक कलर एक एक कंपाउंड को इंडिकेट करता है, इसी तरह हम समझ सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सिलिका जेल और एल्यूमिना थिन लेयर इसके ऊपर ग्लास प्लेट के ऊपर लगाते हैं, इसीलिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं उसे। ओके, नाउ thin layer chromatography, thin layer chromatography, the mixture is passed over adsorbent on a thin glass plate, adsorbent उसके ऊपर एल्यूमिना जेल है ना और सिलिका जेल, उसे बोलते हैं कि adsorbent। ओके, adsorbent Al2O3 और सिलिका जेल, सिलिका जेल। ओके, and amino acids can be detected by spraying the plate with ninhydrin solution, very important, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, अमाइनो एसिड्स। ओके, राइट। इसके बाद क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी मोबाइल फेज के साथ सेपरेट करता है, ये भी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसका एग्जाम्पल है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स। अभी बता दिया ना मैं, ग्लास प्लेट में एक कंपाउंड दूर जाता है, एक बीच में रह जाता है, एक सामने ही रह जाता है ना, ऐसा प्लेट के ऊपर, ये बी सी फॉर एग्जाम्पल। ऐसा ही सेपरेट करते हैं यहाँ पर भी, वो उसके लिए एग्जाम्पल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज डैश पूछता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के लिए एग्जाम्पल पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में कैसा सेपरेट करते हैं, देखो, ये स्पेशल क्वालिटी पेपर, सपोज ये स्पेशल क्वालिटी पेपर, क्वालिटी पेपर, ये पेपर लेके इसे रोल बना देते हैं, इसी तरह रोल। ओके, ये रोल को एक होल करके एक क्लिप लगा देते हैं, ऐसा पिन। ये पिन को यहाँ लगा के इसे इसमें सस्पेंड किया जाता है, ऊपर लिड एक रख के इसके ऊपर, बीकर के ऊपर इसे ऐसा सस्पेंड करते हैं क्लिप लगा के। इसके अंदर इल्यूएंट, इल्यूएंट मीन्स सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स रखते हैं इसमें, और जो भी कंपाउंड है वो कंपाउंड में से डिफरेंट, जो भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है उसमें से कंपाउंड सेपरेट करना है, उसको यहाँ पर डाल दो। सेम पेपर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जैसा हुआ सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। सपोज ये इसमें ये मिक्सचर में ए बी सी 3 कंपाउंड्स है, ये इल्यूएंट मीन सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ऐसा ऊपर जाते समय ये को यहाँ तक ले जाता है, बी यहाँ तक, सी यहाँ तक, ये बी सी ऐसा सेपरेट हो जाते हैं। सपोज ये कलरलेस है तो यहाँ पर भी निनहाइड्रिन,
निनहाइड्रिन स्प्रे करके देखते हैं, और यूवी रेस भेज के भी देख सकते हैं। यूवी रेस दो भी इंपॉर्टेंट है। निनहाइड्रिन और यूवी रेस आर यूज्ड टू डिटेक्ट कलरलेस कंपाउंड्स। सो इसमें ये पेपर यूज करते हैं ना, ये पेपर में वाटर ड्रॉपलेट्स स्ट्रक होके रहते हैं। दिस इज स्पेशल पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं इसको। इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स स्ट्रक होके रहते हैं। दैट वाटर एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज। इसमें पूछते हैं कि स्टेशनरी फेज इज डैश, मीन्स स्टेशनरी फेज इज वाटर स्ट्रक्ड इन paper, and mobile phase is dash here, eluent or eluent में solvent और mixture of solvents वही होता है। देखो यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी, a special quality paper known as chromatography paper is used. It contains water trapped in it which acts as the stationary phase, समझी। and for separation of sugars and amino acids, which process is used? Paper chromatography, sugars and amino acids, वो याद रखो। Example is very important. Okay, 718 718